آپ کی چائے آپ کے کمرے میں رکھ دی ہے. بہت شکریہ آپ کا. گرافکس کا سارا کام مکمل ہے, پرنٹ کے لیے تیار ہے. صرف چوتھی قسط کا انتظار ہے کہ پریس کے پچھلے قرضوں کا کھاتہ صاف کر دیا جائے. ابھی تیسرا چیک پاس نہیں ہوا ہے, اس لیے ہم تھوڑا ٹھہر گئے. ابھی آئندہ کے آرڈرز کے بارے میں دیے گئے وعدوں کی وجہ سے ہم چیک کی وصولی کے لیے ان پر دباؤ نہیں ڈال سکتے. مجبوراً انہی حالات میں گزارا کرنا ہوگا. ان کے فائنانس ڈائریکٹر کہہ رہے تھے کچھ اور اشتہاری کمپنیوں نے ہم سے آدھی قیمت پہ آرڈر لینے کی تجویز دی ہے. آپ کا کیا خیال ہے فروزان فر صاحب؟ فروزان فر صاحب, میں آپ سے مخاطب ہوں. کس بارے میں؟ وہی ایگریمنٹ کینسل کرنے کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اچھا, ہمیں ایک وکیل کا انتظام کرنا ہوگا. اس میں تو ٹائم لگے گا اور وکیلوں کی فیس بھی بہت زیادہ ہے. یہ وکیل صاحبہ جس نے ہمارا کیس ہینڈل کیا تھا خاصی پیش رفت کر لی تھی. ان کو ہماری کمپنی کے مسائل سے بھی آشنائی ہے. میرے خیال سے ایک معذرت خواہی کر کے کیس دوبارہ ان کے حوالے کر دیں. ہم اس کے مقروض ہیں, صرف معذرت خواہی سے کام نہیں چلے گا. لیکن ہم پر ان کا قرضہ ایک نئے وکیل کی فیس سے اچھا خاصا کم ہے. ٹھیک ہے, مجھے آج نیخا صاحب سے کسی سلسلے میں ملنا ہے. اس موضوع کے بارے میں بھی ان سے بات کر لوں گا. آپ لوگ میٹنگ جاری رکھیں. آپ شام کو میٹنگ کی رپورٹ مجھے دے دیں. فی الحال خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں اتنی جلدی میں؟ تو دے رہا ہے. السلام علیکم انجینئر صاحب. کیا ہوا؟ سلام، کیوں سلام. تو کیسی طبیعت ہے؟ ارے بس گھر میں ذرا سیڑھی سے پھسل گیا اور چوٹ لگ گئی. ارے تھوڑا احتیاط سے چلا کیجیے جناب. آپ کھیل شروع کیجئے, میں ابھی آتا ہوں. ٹھیک ہے, خدا حافظ. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. کیا کر دیا ہے؟ اس سے گیدڑ کا کام ہے جسے پٹوایا تھا. تو بتایا کیوں نہیں؟ دوبارہ تم سے التماس نہیں کرنا چاہتا. تم تو میرے مسائل کے ذمہ دار نہیں ہو نا. مگر میں تمہارا دوست نہیں ہوں. جب اس کے ہاتھ توڑوں گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ شیر کے دم سے نہیں کھیلنا چاہیے. میں کمزوروں پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا, کیونکہ ایسے کاموں کے نتائج اچھے نہیں نکلتے. اس دفعہ قانونی راستے سے اس کو سزا دوں گا. کہو نا کہ ڈر گئے ہو, بہانے کیوں بنا رہے ہو؟ ہاں ڈر گیا ہوں. ڈرتا ہوں کہ ممکن ہے تم خون کر بیٹھو اور بالوں کی جگہ سر ہی کاٹ لے آؤ. نہ, اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے. میرے سپرد کر دو, میں قانونی راستے سے حل کر دوں گا. یہ لڑکا مجرم ہے. کوئی نیا جھگڑا نہ پیدا ہو جائے. اگر کوئی مسئلہ بھی ہوا تو وہ تمہارے لیے نہیں ہوگا, اس کے لیے ہوگا. تم بے فکر رہو. السلام علیکم. دوبارہ وعلیکم خراب ہو السلام. گئی ہے؟ ہاں دوبارہ خراب ہو گئی ہے. فون کر کے سروس والے کو بلا لینا. فون کیا ہے, ابھی آ جائیں گے. کس فلور میں پھنسی ہے؟ 9 اور 10 فلور پہ ان کے بیچ میں, اور ایک آدمی اندر پھنس گیا ہے. اوہ مائی گاڈ. ارے یہ لفٹ ٹھیک کرنے والا کب آئے گا؟ پرسکون رہو, ابھی کھل جائے گا. کیسلا حوصلہ جناب, مجھے یہاں پھنسے ہوئے 10-15 منٹ ہو گئے ہیں. آرام سے, ٹریفک میں پھنسا ہوا ہے, ابھی آ جائیں گے. جناب ایک زحمت کریں, بلڈنگ کے انچارج کو بلائیں. اتنا شور نہیں مچاؤ, ابھی آتا ہی ہوگا. جناب جی دیکھیے, میں بھی ایک دفعہ سب پھنس گئی تھی, چند دفعہ اوپر نیچے چلی, ٹھیک ہو گئی. آپ بھی آزما سکتے ہیں. ارے محترمہ, اوپر نیچے چلنے سے لفٹ گر ہی نہ جائے. ٹھیک ہے تو پھر منتظر رہیے, ابھی سروس والا آ جائے گا. ارے یہ کہاں آ کر پھنس گیا میں. ہلو, السلام علیکم امی, کیسی ہیں آپ؟ کیا کپڑے کتنے؟ جناب ٹھیک ہے. ہاتھ نہ لگائیں, بٹن کام کرنے لگا ہے. ٹھیک ہے. ہما کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا, آپ جیسا سمجھیں. ٹھیک ہے, اوکے, خدا حافظ. محترمہ بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. آزرنیا صاحبہ آپ ہیں؟ السلام علیکم. آپ تھے جو پھنس گئے تھے؟ جی محترمہ, میں ہی تھا.
आप ही ने मुझसे कहा कि ऊपर नीचे जाने को। हाँ, बहुत शुक्रिया, मेरी तो सांस ही बंद होने वाली थी। क्या इस बिल्डिंग का कोई इंचार्ज नहीं है? लोगों को मुसीबत में डाल क्यों रखा है। नहीं है, कई दफ़ा उनसे कह चुके हैं, लेकिन उनके कान पर जूं ही नहीं रेंगती तो क्या किया जा सके। जी माफ़ कीजिएगा। नेखा साहब से एक मुलाकात तय थी, क्या वो तशरीफ़ रखते हैं? नेखा साहब के सेक्रेटरी हैं, उनसे पूछ सकते हैं। दरीन बाजार अगर सुदीस्त बदरविश खसंदस्त खुदाया मुनम गर्दान बेदरवेशी। जी हाँ। अरे क्या किस्सा है, इंसान को हाबिल और काबिल की कहानी याद आ जाती है। जी जनाब, फुरुज़ान फर हूँ। जी 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 जी। इन बातों के अलावा और कोई भी ऐसा नुक्ता है जो आप बताना भूल गए हों? नहीं, सब कुछ यही था जो मैंने अर्ज़ किया। अलबत्ता एक बात है, मैं चाहता था फरमाइए, कि जो कुछ है कहिए, मुमकिन है मुफीद साबित मैं हो। चाहता था कि ये आपकी कोलिग मोहतरमा आज़र नयाज़ साहब। जी आज़र नियाज़ साहिबा हमारे बाउंस चेकों के केस को पहले की तरह आगे बढ़ाएं। इस बारे में बात बाद में करेंगे। लीजिए, आपकी चाय ठंडी हो रही है। बहुत शुक्रिया। अपने मरहूम वालिद के कत्ल के बारे में मालूमात पर नज़र डालें। कानून की रूह से आपकी बातें एक दावे से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती हैं। लेकिन मैंने अर्ज़ किया ना कि मेरे पास 2 गवाह मौजूद हैं। आप पहले मेरी बात पूरी होने दें, फिर बताएं। जी कहिए। सॉरी। अगर आप पिछले केस की तरह इस मसले में भी उजलत करें और बेसब्री से काम लेंगे तो यकीनन कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे। आप पहले हमारे ऑफिस में अपने इस दावे के बारे में ज़रूरी तहकीकात करने दें। मैं आज़र नया साहिबा से कह दूंगा कि इस केस में हमारी मदद करें। आपकी मेहरबानी। अलबत्ता अगर आपकी जगह मैं होता तो ज़रूर अपने पिछले सलूक की खातिर उनसे माजरत ख्वाही करता। जनाब, फुरुज़ान फर हूँ। जी जी जी, फुरुज़ान फर। उनकी उम्र कम है लेकिन बहुत माहिर हैं और तजुर्बेकार वकील हैं। जी हाँ, हम तो कर्जदार की जायदाद को जब्त करने के सिलसिले में इनके काम से मुतमईन हैं। जी। बस नेखा साहब अपनी फ़ीस के बारे में कुछ बता दें तो मेहरबानी होगी। मैं ज़रा इस सिलसिले में अपने कुलीग से बात कर लूँ, उसके बाद आपको ज़रूर बता दूंगा। एक और बात नेखा साहब, ये आपकी लिफ्ट ख़राब है, शायद कोई मौकिल इसमें फंस जाए, ज़रा इसका भी कुछ ख्याल रखें। सही कह रहे हैं जी। आप। मोहतरमा, मैनेजमेंट को फ़ोन करके देखें फिर क्या हुआ है। जी अच्छा। मैं फिर माजरत चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। रमजानी साहिबा, जी जनाब दानिश्वर साहब के एजेंडे को टाइप हाँ किया? जी, कंप्यूटर में मुझे मौजूद एक प्रिंट निकाल के देने प्लीज़। आज़रनिया साहिबा, 1 मिनट माफ़ कीजिएगा। जी फरमाइए। मैं एक दफ़ा फिर जो कुछ उस दिन पेश आया आपसे माजरत चाहता हूँ। उससे भूल जाए फुरुज़ान फर साहब। बहरहाल माफ़ कीजिए। खुदा हाफिज़। जी जी ठीक है। आज़र निया साहिबा, जी नेखा साहब को आपसे काम है। ठीक है। असल में नेखा साहब, मुझे इस केस पर काम करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। इसीलिए यही आपकी अदम दिलचस्पी और गुरूर उनके इसरार का सबब बना है। अच्छा, अब छोड़ें, इस मौजू पे बाद में बात करेंगे। मुझे इस वक्त घर जाना है, अम्मी को हवाई अड्डे पहुंचाना है। तो इंशाल्लाह जा रही हैं? 2-3 हफ्ते के लिए मेरी बहन के पास स्विट्ज़रलैंड जा रही हैं। उनके यहाँ डिलीवरी हुई है। मैं माहू बन गया हूँ। उनकी तस्वीर मेरे पास है, बहुत प्यारी है। माशाल्लाह, कितनी प्यारी है। मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी जान को जाने से नहीं रोक सकता, आखिर वो भी मेरी बहन है, अकेली है। तो गज़ल का क्या बनेगा? उसकी देखभाल कौन करेगा? यही तो, बहुत ज़्यादा मुश्किलात मेरे सामने हैं। उनकी नर्स का भी चंद दिन बाद ऑपरेशन है। ओह, तो मैं रह जाऊंगा और गज़ल, अलबत्ता गज़ल की वालदा की मुसलसल फ़ोन और फरमाइशें। बहरहाल मुझे खुशी होगी आपकी खिदमत करके। कोई काम हो तो तकल्लुफ़ ना करें। आप खासकर इस केस पर खुद ही काम करें, दूसरों के बस का काम नहीं है। जैसे आप मुनासिब समझें, ठीक है। घर वालों को भी बहुत बहुत सलाम कहना। ज़रूर। खुदा हाफिज़।
तुम्हारे ये चचा भी अजीब आदमी है। मैंने 2 घंटे तक इतनी सारी बातें बनाई, एक एक रिश्तेदार को बुरा भला कहा कि ये साहब कम से कम एक जुमला तो बोले, लेकिन उन्होंने तो एकदम मुँह सी लिया। लेकिन अच्छा छोड़, जाने दो बस। क्या चीज़? कुछ नहीं बेहजाद, छोड़ो ना, ज़्यादा कोई ख़ास बात नहीं है। या तो बात मत करो या जब शुरू करो तो आखिर तक बताया करो। असल में बात ज़्यादा अहम नहीं थी, बस जब मैं अपनी बातों में उस जगह पहुंचा कि आपकी कोई बहन हो शायद, तो मेरी बात का मतलब समझ सके, तो चचा ने तेज नज़रों से मुझे घूरा। तो इसका मतलब यह है कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। नहीं यार बेहजाद, खामखा बात का बतंगड़ ना बनाओ, तुम अपनी फिक्र का जो, मुझे भी अपना काम करने दो। माफ़ कीजिएगा, आपकी जगह कौन सी होना चाहिए जो इस वक्त नहीं है? अच्छा ठीक है, तुम सब हमें नौकर समझते हो, हमारी जगह यहीं नीचे है और आप ऊपर ऊपर के हैं। दोबारा शुरू हो गए। अरे खुदा के लिए बस भी करो, इतना मत दहाड़ा करो। मोहतरमा सुरैया साहिबा, ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। तुम खुद ही इंसान को अपने कामों के बारे में खोज लगाने पर मजबूर कर देते हो। मेरी बहन, मैं तो घर आकर सब कुछ बता दिया करता हूँ, और अगर कोई बात ना भी बता सकूँ तो ये साहब आके साफ साफ बता देते हैं। क्या ऐसा नहीं है? तुमने अम्मी से कहा, मनोजर से भी कहा कि हमारी एक फूफी है, लेकिन मुझे गैर समझा तुमने। मेरी बहन, आजकल मैं बहुत मसरूफ हूँ, मुश्किलात में हूँ, तुम इस खाते में डालो। नहीं, मैं इसे खुद को समझे जाने के खाते में डाल रही हूँ। बेहजाद, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। सुरैया, कुछ नहीं कहो, बस इतना जान लो कि तुम खुद ही हमारे बीच फासला पैदा कर रहे हो। तुम अपनी जबान बंद नहीं रख सकते थे? हाँ नहीं मेरे भाई, तुम ऐसे इंसान हो कि किसी को अपना बना के नहीं रख सकते। क्यों बताया? मैंने, शायद अम्मी ने बताया हो। अम्मी ने ठीक उसी वक्त सुरैया को बताया जब मैंने तुमसे इसके बारे में बात की। अम्मी ने तो, अरे क्या करूं, मेरी बीवी है ना, आखिर मैं क्या कर सकता हूँ यार। तुम ना करें मनोजर साहब, ना करें। क्या कह रहे हो यार बेहजाद, क्या कह रहे हो तुम? अरे तुम्हारी शादी नहीं हुई ना, इसलिए नहीं समझते। इसी कजिन से तुम्हारी शादी होने दो, देखना पहले ही हफ्ते में स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक अपनी जिंदगी की सारी दास्तान उसे न तुमने सुना डाली तो मुझे बताना। तुम सिर्फ सवारी देने के लायक हो। अच्छा अच्छा, तुम्हारी सवारी भी देख लेंगे। अच्छा जनाब, देखते हैं। सुरैया, मैडम सुरैया, मुझे तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं है सुरैया, चलो यहाँ से चलते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, देखो आधे घंटे बाद अभी देखो कस्टमर आया हुआ है। ओके ठीक है। शहरुज साहब, ठीक कह रही हूँ? आरगवान साहिबा, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? जी, इस म्यूजिक की आवाज़ थोड़ा कम कर सकते हैं? क्यों नहीं, लीजिए आपके लिए। आप जानते हैं सीना कितनी रातों से घर नहीं आया है? मैं कौन होता हूँ जानने वाला? क्या वो तुम्हारा पक्का दोस्त नहीं है? क्या मुझे उसके ठिकाने का पता होना चाहिए? उसका मोबाइल बंद है, अगर जानते हो कि कहाँ है तो बता दो। आप अपना नंबर दे दीजिए, कहीं नजर आया तो कह दूंगा कि आपको फोन कर ले। मेरा नंबर मेरे भाई को दोगे? बस भी करो शहरूज, कम से कम अपने दोस्त की बहन की इज्जत रख लो। अच्छा भाई, अब ज्यादा गैरत मत दिलाओ, माफ कीजिएगा। वो अपने दोस्तों के साथ स्टूडियो में रिकॉर्डिंग में मसरूफ है। ठीक है, एड्रेस? वहाँ का एड्रेस गैरों को नहीं दे सकता, वरना दोस्त नाराज हो जाएंगे। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक तो हो? बिल्कुल एवन मोहतरमा, ठीक, एकदम ठीक। देखो शहरूज, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं किसी और तरीके से तुम्हारे साथ पेश आऊंगी। हाँ? अच्छा ठीक है, आराम से बाजी, आराम से। हमारी यहाँ पर इज्जत है, कस्टमर मौजूद है। साफ जाहिर है आप ही की तरह के लोग बाइस बनते हैं कि आज के जवान दोस्तों के साथ खयानत करें। हाँ, एड्रेस आर्या शहर, ये ले, ये एड्रेस लीजिए, फरमाइए। बहुत शुक्रिया। देखिए बाजी, मुझे आपका भाई बहुत अजीज है, उसके सामने मेरी बहुत इज्जत है, बेइज्जती नहीं कर दीजिएगा। अजीज है, उसके बावजूद तुम्हारे लिए अहम नहीं है कि चंद दिनों से कहाँ गायब हो गए। ओहो भाई, वो यहाँ पर ड्यूटी तो लगाने आता नहीं है कि मुझे मालूम होना चाहिए।
सुरैया सुरैया जी अम्मी जान, क्या हुआ? चचा के घर से है, जवाब दो। बेहसाद का पूछा तो कहूँ नहीं है। मैं क्या करूं? अच्छा, अब जवाब तो दो। मेरे खुदा। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं ताया जान? ठीक हैं आप? इंशाअल्लाह अब तो ठीक होंगे आप। बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इत्तेफाक से इसी बारे में बात कर रहे थे कि रात को सब मिलकर आपकी खिदमत में हाजिर हों। फिर हमने सोचा कि बेहतर आपकी तबीयत कुछ संभल जाए, इसके बाद आपको जहमत दें। बहजाद का तो मोबाइल चोरी हो गया है और पिछले 2-3 दिन से वो चेक और कर्ज खाओं के मसाइल में मसरूफ़ है। कर्जदार और जो आप तो जानते ही सब। जानता हूँ परेशान है, लेकिन कहाँ है? एक फ़ोन तो मुझे कर ही सकता था ना। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन अपने चचा का हालचाल तो पूछ ही सकता था ना। सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल मैं उसे कहूँगी कि आपसे बात करें। खुदा हाफिज। सबको दुआएं कहना। अरे आप बैठे हुए हैं अभी तक, कपड़े क्यों नहीं बदले? अरे मेरी बहन वगैरह रास्ते में है, 4-5 मिनट आपकी इयादत के लिए आना चाहते हैं, जल्दी करें। ठीक है। अरे 50 दफा मैं ये सीढ़ियाँ उतरी चढ़ी हूँ। कौन है? अस्सलाम वालेकुम, खोलिए प्लीज। आरश, हाँ तुम सही नहीं पढ़ रहे हो, क्या हुआ है? थके हुए हो? नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आरश, पहले तुमने सही पढ़ा था, दोबारा तुम पढ़ो उसको। ओके ठीक है, जैसा आप चाहते हैं। सलाम मोहतरमा, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, माफ़ कीजिएगा, मुझे सीना से काम है। मैं सीना को नहीं जानता। तुम्हारे दोस्त जानते हैं। अच्छा, आप तशरीफ़ रखिए, थोड़ी देर में उनका काम ख़त्म हो जाएगा। शुक्रिया। कैसा है, अब ठीक है? हाँ ठीक था। ओके। हाँ अच्छा। दोबारा बहुत सुनना अच्छा नहीं था। चाहोगे? नहीं नहीं नहीं, अगर आपकी तरफ से ओके है तो ठीक है, फिर कोई दोस्तों मसला नहीं। बहुत अच्छा है। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपने बहुत आपने। दोस्तों, आज़रनिया मोहतरम है अपने सीना दोस्त की बहन। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। जी कहिए। आरिश साहब, मैं सीना को लेने आई हूँ, जब तक उससे नहीं मिल लेती यहाँ से नहीं जाऊँगी। आप इतना गुस्सा क्यों हैं? सीना यहाँ नहीं है, हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा आप खुद देख लें। सच कह रहे हैं? देखिए मोहतरमा, ये हमारा स्टूडियो है, यही है, यहाँ पर कोई छुपने की जगह नहीं है, आप देखना चाहें देख सकती हैं। आप ये बताइए जगह ढूंढा कैसे आपने? आप लोग माशाल्लाह से बहुत मशहूर है ना, इसीलिए एड्रेस आसानी से मिला। सीना से मिलें तो मेरा पैगाम दे दें, कहें कि अपना फ़ोन ऑन करे। आपको नहीं पता उनका मोबाइल चोरी हो गया है? वाह वाह, इसी की कमी रह गई थी। अगर मोबाइल चोरी भी हो गया है तो किसी और फ़ोन से कॉल मुझे कर ले, एक फ़ोन तो कर सकता है। शायद बिजी था इसलिए नहीं कर सका। माफ़ कीजिए, अगर काम का मतलब डुगडुगी बजाना है तो मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। आप मेहरबानी करके मेरा पैगाम उसे पहुंचा दें, बस यही कहें कि घर आ जाए। देखिए मोहतरमा, देखिए ये कोई डुगडुगी बाजी नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी और हुनर है। और देखिए अब तक जो भी कुछ हो सका हमने अंजाम दिया और आइंदा भी हम अंजाम देते रहेंगे। शुक्रिया। कोई बात नहीं। माफ़ कीजिए जो आपके प्रैक्टिस में खलल डाला। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अबू जान ये लीजिए, अम्मी ने आपके लिए बनाया, बड़ी जहमत भी की है। अरे फिर वही शरबत है? नहीं, ये मुख्तलिफ फ्रूट का मिक्सचर आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, तुम्हें मुझे कुछ बात करनी थी ना? कैसी बात? उस रात तुमने फोन पर कहा कि चची के घर मैं न जाऊं,
फिर मैंने अस्पताल में भी तुमसे पूछा था। आपके लिए गोश्त के साथ सब्जियों का सूप बनाया है, खाएंगे तो ताकत आएगी हिसाम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सुरूर साहिबा। तो फिर सही कहते हैं कि नाज उठवाने हो तो बीमार हो जाओ। हाय हाय, अब तक क्या कम खातिरदारी की है। अबू जान, आपकी सारी रिपोर्ट्स का रिजल्ट आ गया है। आपका कोलेस्ट्रॉल भी हाई है, आपका शुगर भी हाई है। 2 दिन बाद अस्पताल आइएगा ताकि आपकी आँख का चेकअप हो जाए। 100 बार मैंने आपसे कहा है कि आपके लिए स्ट्रेस कितना मुज़र और जहर की तरह है। बात मत बदलो, मेरे सवाल का जवाब दो। मेरे ख्याल में मेरे और बहजाद की शादी में किसी का भी फायदा नहीं है। क्यों? शादी के बारे में आपके नज़दीक मेरी राय अहम है या नहीं? जाहिर है कि अहम है, बहुत अहम है। असल में अबू जान, मुझे शक है अभी। मुझे कुछ टाइम दीजिए मजीद सोचने के लिए। ठीक है, 1 मिनट में पूछती हूँ। होल्ड। बाहर आओ, देखो आयदा को क्या काम है। क्या काम है? इसके दादा को कब्ज हो गई है तो ये इलाज पूछिए। ओहो, दफा हो जाओ। आई पागल कहीं की। हेलो सलाम, कैसी हो? ठीक हो? क्या हो गया जो मुझे फोन किया है? हाँ, और बताओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा, कैसी हो? सलामत रहें। मिला नहीं? नहीं, लेकिन दोस्तों के पास गई थी और उनसे कहा है। ये लड़का मुझे हार्ट अटैक करवा के रहेगा। खुदा ना करे, इतना परेशान ना हो अम्मी, रात तक आ जाएगा। उसका मोबाइल फ़ोन भी लगता है चोरी हो गया है। चोरी हो गया? ओए होए, वो तो अभी अभी तुमने खरीद के दिया था। हाँ, अपनी तो किस्मत ही ख़राब है। फ़ोन चोरी हो गए तो क्या 2-3 दिनों में उसे कोई फ़ोन नहीं मिला कि घर कॉल कर लेता? मुझे तो परेशानी खाई जा रही है। इसीलिए तो कहते हैं माँ हमेशा मर मिटती है और औलाद लापरवाह। ओहो अम्मी जान, लेकिन आप मेरा और हुमा का भी तो हक है। अरे मैं सदके जाऊँ तुम सब पर, मेरे जिगर के टुकड़े हो। लेकिन फिलहाल तो ये सीना ने हम सबको परेशान कर रखा है। आएगा। हुमा क्या कर रही है? हमेशा की तरह, गुस्सा और तीखापन, मिर्च और लीमू एक साथ। इसको क्यों नहीं ले गए? दिन को टेलर्स की दुकान से आके कुछ को ले गए, बाकी को हमने सोचा कि सीना खुद आके ले जाएगा और हम भी टैक्सी को 15-16 हज़ार तुमान देने से बच जाएंगे। किस दुकान का है? यही जमहूरी रोड अमीर अकरम के नुक्कड़ पर है। ठीक है, कल मैं खुद ही अपने साथ ले जाऊंगी। बहुत शुक्रिया बेटा। और हाँ, याद आया, फ़ोन करके उन्होंने कहलवाया था कि कुछ कढ़ाई बुनाई का काम भी है, वो भी लेती आना। ठीक है अम्मी। जीती रहो। हाँ, ये हुमा के लिए लिए? हाँ, कल उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। देखती हूँ कि आपकी इस मिर्च लीमू में कितना नमक मिला सकती हूँ। खुदा तुझे यूं ही फला फूला रखे। सलाम वालेकुम मेरी हुमा बहन। अरे वाह, वालेकुम अस्सलाम वकील साहिबा। अरे फिर क्यों गुस्से में हो? मेरे सब्र का पैमाना लबरीज हो चुका है। आज मुझे बिल्कुल मूड नहीं है। मेरे साथ बात मत करो, यही मेरी आदत है। आखिर मुझे किस बात पर हंसना चाहिए? हाँ, सुबह से लेकर शाम तक मैं सिलाई करते करते थक गई हूँ। आंखों में रोशनी नहीं बची है, मेरी सारी उंगलियां छिल गई है। समझ गई? तो मुझे किस बात पर खुश होना चाहिए? किस उम्मीद पर? बेवजह में खुश रहो, ऐसे ऐसे करो कि क्या हो? इन बातों को छोड़ो। पता है आज मैंने किसको देखा? किसको? मेहरी साहिबा को। कह रही थी कि खातून आई थी अपने बेटे के रिश्ते के लिए तहकीक कर रही थी। किसके बारे में? हुमा साहिबा के बारे में। अच्छा, रिश्ता आया है? नहीं आना चाहिए था। उसको भी अपनी जगह पे रखो, मैंने बहुत मेहनत की है उस पर। देखो, डॉक्टर और इंजीनियर से कम इस घर में हम आने ही नहीं देंगे। मैं इतनी भी सस्ती नहीं हूँ मेरी बहन। अगर मालो जायदाद और कारखानों का मालिक हुआ फिर भी नहीं मानोगी? उस वक्त देखा जाएगा कि उसकी शक्ल कैसी है, पैसे वैसे खूब है कि नहीं, और पक पक होना चाहिए। पक पक क्या है जिसे हर दफा दोहराती हो? तुम्हें पक पक का नहीं पता? यानी पैसे वाला, गंजा, ज्यादा उम्र और छोटे कद का। अरे वाह, कितना खूबसूरत है, मुबारक हो। जज रहा है तुम पर। आ,
نہیں محترمہ ٹھیک نہیں ہے, صحیح نہیں ہے نا. ہاں آف سیٹ پرنٹنگ میں تو 300 VPI فارمیٹ والی تصویر چل جاتی ہے, لیکن اگر خود تصویر کو چھوٹا بڑا کریں گے تو اس کی کوالٹی خراب ہو جائے گی. دیکھیے اس کی کوالٹی کتنی خراب ہے. اب آپ ایسا کریں کہ اپنے فوٹوگرافر سے کہیں کہ اس دفعہ زیادہ ہائی ریزولوشن کے ساتھ بنائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ سلامت رہیں. السلام علیکم. مظفر صاحب کیسے ہیں؟ خوش آمدید, تشریف لائیے. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کچھ منٹ تشریف رکھیں, میں ابھی آتا ہوں. ٹھیک ہے, میں یہیں بیٹھتی ہوں. بہت شکریہ. میری ان میڈم کے ساتھ میٹنگ ہے, کوئی کام تو نہیں ہے؟ نہیں ہے, صرف یہ کہ میں نے میٹنگ میں بھی کہا کہ اس پرنٹنگ کا نقصان ہم ہی لوگوں کو بھرنا ہے. جی محترمہ, ہم ہی کو بھرنا ہوگا. کہنے میں تو آسان ہے, 5 ملین تومان اس دفتر کے 1 مہینے کا کرایہ بنتا ہے. نہیں ہے ہمارے پاس. کئی مہینوں سے ہماری کمائی خرچے کے نصف سے بھی کم ہے. آخر میں کس کو؟ میں ان سب باتوں کو جانتی ہوں, لیکن چارہ کار کیا ہے مجھے نہیں پتا. جیسا مناسب سمجھے ویسا کریں. جعفری صاحبہ, جی ذرا فوقانی صاحب کا نمبر ملائیے, سلسلے میں کوئی حل نکالوں. آپ کا یہ گواہ کیا نام تھا ان کا؟ دلاور امینی. کیا یہ امینی صاحب جانتے ہیں کہ اگر آپ کے چچا پر جرم ثابت ہو گیا تو وہ بھی پکڑا جائے گا؟ میں سمجھا نہیں, کیا مطلب؟ دیکھیے, ان صاحب کے دعوے کے مطابق یہ 20 سال پہلے ایک قتل کا گواہ تھا. جی. ان تمام 20 سالوں میں اس نے بلیک میلنگ کی ہے اور حقیقت کو چھپایا ہے. جی. ہاں, تو یہ کام قانوناً جرم ہے. ہاں, اصل میں نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا. ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ان کے ساتھ ایک ملاقات کا انتظام کرنا پڑے گا. میں خود ان سے بات کروں گی. ٹھیک ہے, میں کہہ دیتا ہوں. امید ہے وہ کوئی عذر اور بہانہ پیش نہیں کرے گا. آپ کے خیال میں اسے مکرنے کا امکان ہے؟ جی محترمہ, آپ وکیل ہیں, بہتر جانتی ہیں کہ آج کل کے معاشرے میں ہر انسان کی قیمت ہوتی ہے. ہمارا گواہ بھی اس سے مستثنا نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو اس کیس کے نتیجے کے بارے میں 100% اطمینان نہیں رکھ سکتے. لیکن میرا گواہ تو صرف دلاور نہیں ہے, میرے پاس ایک اور گواہ بھی ہے جس نے چچا سے دلاور کے بلیک میلنگ کرتے ہوئے فلم بنائی ہے. نیک خان صاحب نے یہ آپ کو نہیں بتایا؟ کیوں نہیں. اور یہ دلاور بھی ہمارے ساتھ جو تعاون پر راضی ہوا ہے وہ اس فلم کی وجہ سے ہے. شاید. دیکھیے محترمہ, میں ایک ایسے راستے پر چل پڑا ہوں جو ون وے ہے اور واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. مجھے آخر تک جانا ہی جانا ہے. جی آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن ایک وکیل کے عنوان سے ہمارا بھی فرض ہے کہ کیس کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھیں. میں اپنی تحقیقات جاری رکھتی ہوں, آپ کو بس اتنی زحمت کرنا ہے کہ مجھے ایک وکالت نامہ دے دیں. ٹھیک ہے. اور ہاں, میرے خیال میں آپ نے نخواست صاحب کو بتایا تھا کہ آپ کے گواہ کے دعوے کے مطابق آپ کی ایک پھوپھی بھی ہے جو آپ کے والد اور چچا کے اختلافات سے بھی باخبر تھی ہیں. ہاں, البتہ یہ بات دلاور نے کی تھی. کیوں بھلا؟ آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں. کدوم خستم، کدوم جنون، کدوم عشق. شاید خیلی از این حرفا دروغه، تا وقتی با همین از عشق میگیم نباشیم قولمون حتی دروغه. از این عشقایی که زنجیر میشه، حوث هایی که دامن گیر میشه، میترسم چون دلم بی‌اعتماده به احساسی که بی تأثیر میشه.